Very good evening to all. Welcome to the fourth episode of Greener Happier Tomorrow. Greener Happier Tomorrow is an initiative to build a green community of plant lovers. Today we welcome Seema Chadha. She is a plant lover and she is growing a lot of plants, and she is now sharing her experience about how to take care of plants in monsoon season. हमने देखा होगा कि मानसून सीजन में बहुत सी ऐसी दिक्कतें आती हैं कि प्लांट्स कभी गल जाते हैं, किस पौधे को कितना पानी देना चाहिए। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हमारे पास आती हैं, तो हमारे साथ एक्सपर्ट हैं सीमा जी। सीमा जी, वेलकम टू आवर शो एंड थैंक्स अ लॉट फॉर coming to this show as a speaker and sharing your experiences, and your tips will definitely help all of us. So over to you, Seema ji. Thanks, Ekta ji. Very thanks for inviting me to host this my favorite topic on my favorite topic. So good evening, everyone, and hope all are very well and enjoying the very pleasant weather. The rainy season is one of the pleasant one all for us and for plants also. So today I will share my experiences about how rainy seasons are good for the plants, and share some tips of it, and how plants suffers from the heavy rain, and how it with the strong winds during the rain. So rain were not something that plants can handle the heavy rains. So in the initial years, I lost many plants in heavy rains and winds. But day by day, I learned to salvage plants that had been damaged by heavy rains. So same now also. So plants suffer stress, waterlogging hai, and can also cause the yellowing of foliage, and root rot hai, जो कि when aeration जो है वो roots में नहीं हो पाता है, तो उसके साथ ही root rot जो है वो एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो आफ्टर रेन जो है हम प्लांट्स में देखते हैं, and ultimately the plant die because of that the roots is already damaged by the water lodging. So other are problems like risk of fungal attack. Fungal attack, it's very common in the plants after the rain. So in the root system of the plant, so what to do to save the plants after rain? Now you can do by restoring its vitality. It's an attempt to make the plant new. For this, we have to check the infestation of potted plants. कि जैसे heavy rain हुआ है, तो उसके बाद जैसे मैंने अभी आपके साथ बता रही थी कि water lodging हो जाता है, तो उसके साथ ही मतलब infestation of pots हो जाता है. There are improper planters भी हैं, और सॉइल मिक्सचर जो है वो भी वन ऑफ द रीजन होता है कई बार. तो हमें क्या है कि आफ्टर रेन्स जो है इमीडिएट चेक करना चाहिए कि रूट्स ऑफ द सॉगी जो प्लांट है वो सॉगी तो नहीं है, or due to heavy rain and continuous rain affect the nutrients in soil also. So and very important for this to check all these things. And lastly, the very important one is the pathogens attack. After the rains, there are numbers of pest attacks in our plants, and they always damage our the plants if we want to take care of it at that time. So
but there are some plants जो will bounce back with minimal efforts. जरूरी नहीं है कि हर प्लांट को, जैसे वाटर लॉगिंग हो गया तो आप उसको टर्न कर दीजिए प्लांट पॉट को, तो वाटर उसमें से निकल जाएगा. देन टेक आउट द, उसमें एक खुरपा डाल के उसको नीचे तक, डीप तक लेके जाइए, जिससे कि पानी जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो सारा रिलीज हो जाए. तो विद मिनिमल एफर्ट्स भी हम करके प्लांट्स को जो है अपना बचा सकते हैं. बट देयर आर सम पैटर्न हैव नॉट स्नैप्ड, they will prop themselves back up soon. So to boost them all, we must add the organic matter. सबसे बड़ी बात ये होती है कि रेन्स के बाद जो है कि अगर हमने वाटर लॉगिंग का भी वो कर लिया, रूट्स भी चेक कर ली, उसके बाद पेस्ट भी देख लिया है और प्लांटर भी देख लिया है, कि कई बार ये होता है कि लगातार बारिश पड़ने के साथ साथ क्या होता है कि वो वाटर लॉगिंग के साथ ही एल्गी फॉर्म होती जाती है. आप कई बार देखेंगे कि जो टेराकोटा के पॉट्स होते हैं वो बाहर से सारे उसके ऊपर एल्गी ग्रीन ग्रीन सारी वो हो जाती है, और सम ऑफ आउट ऑफ शेप्स भी हो जाते हैं. तो उन सब चीजों को तो हम हैंडल कर सकते हैं और साथ के साथ ही हटा सकते हैं. नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आती है टू रिवाइव द प्लांट आफ्टर द heavy rain or after the monsoon is the very important to add organic manure in it. आपको ऑर्गेनिक ही मैटर उसमें ऐड करना होगा. आप उसमें प्लीज डोंट ऐड द फर्टिलाइजर्स जो केमिकल्स हमें मार्केट में मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस में आते हैं, एंड दे टेल कि दिस इज अ कंप्लीट फूड फॉर द प्लांट्स. बट I always advise कि जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो हम सब्जियां खा रहे हैं उन्हीं के पील्स हैं, उन्हीं की ही फ्रूट्स के पील्स हैं, उनको आप क्या कहते हैं वापस आप उनको पाउडर फॉर्म में, जैसे बनाना का है पील है, आप उसको पाउडर फॉर्म में करके उसको ऐड कर सकते हैं अपने सॉइल के अंदर. एंड ऑर्गेनिक मैटर इसी टाइप से आप उसको बना सकते हैं. लॉट ऑफ थिंग्स हैं. मैं इसमें अनियंस का करती हूँ, जो कि मैंने अपने इधर स्लाइड्स में भी दिखाया है. बायो एंजाइम्स हर चीज का है इसमें, पोटैटो का भी है एंड अनियंस का है. देन पपाया इज देयर, ड्राई फ्रूट्स का भी है इसमें. और वो ये सारी एक क्वांटिटी है. जैसे हम इसमें 100 ml into 5 liter of water and then spray it on the green plants and all the plants. तो एक ये बूस्टअप उनको मिलता है. तो एक जो न्यूट्रिशंस ऑलरेडी प्लांट्स में से चले जाते हैं रेन्स के साथ, जब उस पे लगातार पानी आ रहा होता है, तो ऑर्गेनिक मैटर played a very important role to boost all the plants. तो सेकेंडली मैं शेयर करूंगी कि I always use the rotten, you can say it, totally decomposed cow dung. That is very good for the plants. And next thing is when you feel the soil is soggy, and don't water it after the rain. जब भी मिट्टी आपको थोड़ी चिपचिपी या उसको हाथ लगा के देखें और उसको आपको वो गीली लगती है, तो बिल्कुल भी 1 इंच नीचे तक उसको डीप आप जाके देखें. अगर वो जरा सी भी गीली है तो प्लीज डोंट वाटर द प्लांट, अदरवाइज रूट रॉटिंग जो है सबसे पहला प्रॉब्लम जो है उस प्लांट में हो जाएगी. तो और उसके बाद क्या है कि आप इमीडिएट उसमें है आप ऐड कर सकते हैं लिक्विड फर्टिलाइजर. लिक्विड जो फर्टिलाइजर है जो हम घर पे ही प्रिपेयर करते हैं, जो कि मैं अभी आपको बता भी रही थी. जैसे डिफरेंट अनियंस पील्स हो गए, पोटैटोज हो गए, एंड ऑल द वेजिटेबल पील्स, all the kitchen waste, that is the organic one.
एक बहुत सिंपल फंडा है इसमें कि हम जितना खाते हैं, इफ वी डोंट वांट टू फिल्स लैंड ऑफ फ्रॉम द मतलब हम एक लैंड न भरते जाएं वेस्ट का, टू कंज्यूम ऑल द वेस्ट एंड बिकम द नो वेस्ट, अपना घर अपना कॉलोनी बनाना चाहते हैं, तो बेस्ट वे है कि जितना ऑर्गेनिक आप खाते हैं, चाहे वो फ्रूट्स है चाहे वो वेजिटेबल्स है, वो सब उसका पील्स जो है आप उसको कंपोस्टिंग में करिए या लिक्विड फर्टिलाइजर बनाइए, जो कि बहुत ज्यादा, इससे अच्छी चीज कोई भी आपके प्लांट्स के लिए नहीं है। चाहे वो आप तो मार्केट्स में कुछ भी बोले कि दीज आर माइक्रोज एंड ऑल दैट, इतने हेल्दी कोई भी चीजें नहीं है जो कि ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, जो ऑलरेडी हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसमें लिक्विड उसमें जैसे है आप यूज कर सकते हैं, नीम खली ले लीजिए, नीम खली इज वेरी गुड। आप 100 ग्राम्स नीम खली ले लीजिए, देन ऐड 100 ग्राम्स या एक पार्ट आप नीम खली लीजिए, एक पार्ट आप ले लीजिए मस्टर्ड केक, सरसों की खली, एक पार्ट बोन मिल लीजिए, एंड एक पार्ट आप उसका क्या कहते हैं, एक हैंडफुल ले लीजिए वुड ऐश का, कोला ऐश की बात नहीं कर रही, वुड ऐश। सीमा जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पर मैं आपके कुछ इंग्रेडिएंट्स देख रही हूँ, क्या आप ये बता सकती हैं हमारे ऑडियंस को कि ये इंग्रेडिएंट्स आप क्या यूज कर रही हैं? हाँ जी, एक मिनट थोड़ा तेज बोलिए एकता जी। ये जो इंग्रेडिएंट्स अभी मैं देख रही हूँ, क्या आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स क्या है? ये मैंने एकता जी दिखाए हैं कि मैं जो कंपोस्ट करती हूँ, जैसे हम मिक्सचर बनाते हैं फॉर प्लांटेशन के लिए, जो पॉटिंग मिक्स है, आई एम शोइंग दिस द पॉटिंग मिक्स। तो हमारा पॉटिंग मिक्स कैसा होना चाहिए कि वो जो हाथ से हम लेना तो वो बिल्कुल बुरबुरा होना चाहिए, जैसे कंपैक्ट फॉर्म में कभी भी नहीं होना चाहिए। जैसे हम काउडंग यूज करते हैं, तो काउडंग यूज करते हैं, तो ये काउडंग जो है वो ऐसा बुरबुरा होना चाहिए कि आप उसको एक हाथ में ले तो बिल्कुल दिखना चाहिए। और ये सैंड जो है वो दिखाई जा रही है कि जब हम इसके सेकुलेंट्स के लिए सॉइल मिक्स बनाते हैं, तो we always add one part of it, the sand, one part of the cow dung, and one half part, then you can say it, नीम की खली थोड़ी उसमें डालनी जरूरी होती है। एंड ये तीनों वही चीजें शो की गई हैं इसमें पॉट्स में, कि इस टाइप से बुरबुरा होना चाहिए। कई बार होते हैं कि हम लोग बाजार से सैंड खरीद के लाए, किसी से भी लेके आ जाते हैं, एंड देन भी बिना उसको क्लीन किए, देखिए मार्केट से लाते हैं और बिल्कुल ऐसे ही उसको अपने पॉटिंग मिक्स में डाल देते हैं, बट नॉट दैट। आप उसको पहले उसको पूरा क्लीन कीजिए एंड देन उसके बाद उसको यूज कीजिए। और आपका काउ डंग जो होना चाहिए, वर्मी कंपोस्ट भी आप अगर यूज करते हैं तो वो भी आपकी जो है कंपैक्ट फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। इफ इट इज इन कंपैक्ट फॉर्म तो इट मींस कि वो बिल्कुल रोटन नहीं है, डिकम्पोज्ड नहीं है, और अगर उसको आप डालेंगे तो ऑब्वियस है वो फंगल अटैक करेगा ही करेगा रूट जोन में। तो दिस इज द वही शो किया है कि पॉटिंग मिक्स जो है आपका ऐसा मतलब एकदम बुरबुरा सा पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, नॉट ए कंपैक्ट फॉर्म में। तो जैसे सीमा जी, आपने बोला कि वर्मी कंपोस्ट के बारे में कुछ बोला, जैसे अभी नॉर्मली हर किसी को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है और ये चीज़ें नहीं पता चलती है, तो क्या आप थोड़ा बता पाएंगे कि कैसे एक नॉर्मल पीपल जो पहली बार वर्मी कंपोस्ट लेने जा रहा है, वो वर्मी कंपोस्ट की क्या क्वालिटी है उसको कैसे जाने? हाँ जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एकता जी। वर्मी कंपोस्ट जैसे जो भी लेने जाते हैं तो मार्केट में नहीं पता चलता कि कौन सा है, क्योंकि एक तो पूरा पैक्ड फॉर्म में होता है पहली बात, सेकेंडली वो खुला कभी मिलता नहीं है आपको, एंड और इसकी पहचान यही है कि जब आप उसको हाथ में ले तो वो बिल्कुल आप उसको फील करें, जैसे हाथ में लिया तो यू कैन फील
तो वो अलग अलग, जैसे ना स्प्रिंकल नहीं करते, जैसे हम सॉल्ट से स्प्रिंकल कर रहे हैं, या वो अगेन मैं बोलूंगी वो कंपैक्ट फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जहां पे वो कंपैक्ट फॉर्म में हुआ तो इट्स नॉट इन अ डिकम्पोज, पूरा डिकम्पोज नहीं है वो। और जितना ब्लैक होगा, जितना ब्लैक चॉकलेट ब्लैक होगा, उतना ये बेस्ट फॉर्म होगा उसका। और इसमें हम कोकोपीट भी यूज कर सकते हैं अपने पॉटिंग मिक्स के अंदर, उन प्लांट्स के लिए जिनको मॉइस्चर चाहिए, क्योंकि प्लांट्स में क्या है कि अलग अलग कैटेगरीज है। कुछ ऐसे सेकुलेंट्स एंड कैक्टस हैं, दे डोंट नीड अ वाटर, और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हमेशा मॉइस्चर चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज दे डोंट सर्वाइव ही नहीं करते बिना मॉइस्चर के। तो हर एक का अपना अपना पॉटिंग मिक्स जो है, इस हिसाब से हम अलग अलग बनाना उसमें होता है। वेजिटेबल्स का अलग होता है, सेम विद द फ्रूटिंग। अगर आप फ्रूटिंग ज्यादा वो लेना चाहते हैं तो उसमें आप फॉस्फोरस एंड देन पोटाश जो है वो ज्यादा मिक्स करेंगे। और अभी जैसे हैवी रेन्स हुई है तो उसके बाद आपका ऐसा हो जाता है कि एकदम हमें रूट जोन के ऊपर वर्क करना पड़ता है कि रूट जोन ठीक है या नहीं है। तो इस टाइम पे हमें ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन देना है। नाइट्रोजन देने का ये मतलब है कि इट वो एक हेल्दी फॉर्म करेगा पहले उसे, प्लांट्स को। तो उसके बाद फिर हम उस जो है वी ऑलवेज से एनपीके ना, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, तो ये देना जरूरी है। और वंस इन ए मंथ आप फर्टिलाइजर हर प्लांट को देना है, और प्लांट छोटा है तो उसको कम क्वांटिटी, बड़ा है तो उसको उतनी क्वांटिटी, अकॉर्डिंग टू द साइज एंड द नेचर ऑफ द प्लांट। अब आपने ये नहीं है कि आपने 10 गमले रखे हुए हैं तो आप यू ट्रीट एवरी वन द सेम, बट प्लांट के नेचर को देखते हुए व्हेन वी टॉक अबाउट अ फ्लावरिंग प्लांट, तो उसके अंदर हम जब पॉटिंग मिक्स बनाएंगे तो उसमें हम ऐश कभी भी नहीं डालेंगे, क्योंकि फ्लावर्स जो है वो कलर और फ्रेग्रेंस देते हैं। तो ऐश डालने से क्या होता है, जो वुड ऐश हम डालते हैं उससे क्या है कि पीएच लेवल जो है सॉइल का वो इंक्रीज हो जाता है। तो पीएच लेवल अकॉर्डिंग टू प्लांट सेटल करना उसकी ब्यूटी के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। विदाउट मतलब ऐसे नहीं है कि हमने एक मिक्स बनाया एंड वी डिस्ट्रीब्यूट दैट टू एवरी प्लांट, इट्स नॉट लाइक दैट। फ्रूटिंग का अलग है और वेजीज का अलग है, सेम विद द फ्लावर सेक्शन इज अलग। एंड कैक्टस, कैक्टस इज टोटली डिफरेंट, उसमें परलाइट के बिना नहीं हो सकता, बिना उसकी जो सॉइल मिक्स बनेगी बिना पेबल्स डाले नहीं हो सकता वो। तो ये कुछ चीजें हैं। आप आफ्टर रेन क्या है कि उनको सेकुलेंट्स को तो हम बिल्कुल भी शेडो एरिया में रखते हैं, रेन के उसमें वो मतलब ही नहीं है, क्योंकि इट्स अ वेरी सेंसिटिव प्लांट्स, एलोवेरा एंड ये सब जितने भी सेकुलेंट्स के अंदर आते हैं। तो इस टाइप से ही है। और जैसे हम फर्टिलाइजर्स का ध्यान रखते हैं, लिक्विड मैन्योर्स वगैरह हम देते हैं, और जो वेरी एसेंशियल्स हैं उनके न्यूट्रिएंट्स के लिए। नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्लांट्स के लिए कि हम उसकी प्रूनिंग करें आफ्टर द रेन्स, नॉट बिटवीन द रेन्स, नॉट ऐसा नहीं है कि रेन मतलब अभी मानसून सीजन चल रहा है एंड वी स्टार्ट डूइंग द प्रूनिंग ऑफ द प्लांट्स, इट्स नॉट दैट। प्रूनिंग हमें बिल्कुल उसके बाद करनी है, क्योंकि हमें फ्रूटिंग भी लेनी है, फ्लावरिंग भी लेनी है। तो टॉप एवरी टॉप ऑफ द प्लांट वो कट होना ही चाहिए। प्रूनिंग करने के बाद हम एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो थिनिंग ऑफ द शूट्स, क्या होता है कि जैसे ही हैवी रेन होती है उसके साथ साथ ही प्लांट्स जो हैं उनकी एकदम ग्रोथ इनकी बढ़ जाती है, एकदम इतना
अच्छा वो उनका फॉर्म आ जाता है, लीव्स का आता है, एंड दे ग्रो वेरी वेल। तो उस टाइम सबसे पहला पॉइंट है कि जो क्राउडेड पॉट्स हैं आपके, वो जो है उसमें थिनिंग करनी बहुत जरूरी है। जो एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं, जो कुछ एक्स्ट्रा हो रहे हैं, जैसे मैं आपको अपना एक ये प्लांट दिखाती हूँ, देख पा रहे हैं अगर आप, तो ये बहुत छोटा सा प्लांट है, प्लांटर है, बट सी इट्स फुल ऑफ, इसमें बिल्कुल जगह ही नहीं है। बट नाउ दिस इज द टाइम कि मैं इसको पूरा क्या कहते हैं, इसके अंदर जो 4-5 प्लांट्स ऑलरेडी है विद रूट्स, सो इनकी थिनिंग करनी बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये कुछ टाइम के बाद जो ये सरवाइव नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ रह के, वो मतलब इनकी रूट्स को प्रॉपर एरेशन नहीं मिलेगा, एंड व्हेन रूट्स को एरेशन नहीं मिलेगा तो वो फंगल अटैक इमीडिएट होगा। तो ये है चीजें। और जब भी हम प्लांट को लगाएं तो नीचे, सबसे पहले पॉट के नीचे जो है होल्स करने बहुत जरूरी है, जिससे कि जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो अपने आप, एक्स्ट्रा वाटर जो है वो निकल जाए, उसमें वाटर लॉजिंग नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो सबसे पहले उसके होल्स करें। प्लांटर के कोई भी आप प्लांटर ले सकते हैं, टेराकोटा इज द बेस्ट वन, उससे जैसा तो रिजल्ट कोई भी नहीं दे सकता। बट अब हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली क्या कहते हैं कि नर्सरी जो पॉटर्स हैं, पॉट्स हम लेने लग गए हैं, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू हैंडल इट, और आफ्टर 4-5 ईयर्स के बाद उसको चेंज कर सकते हैं। और ग्रो बैग्स हैं, ग्रो बैग्स भी बहुत अच्छा एक मीडियम है कि इसका प्लांट्स के लिए, बट टेराकोटा से बेस्ट कुछ नहीं है। तो उसका वही है कि जब भी आप उसको पॉटर, कोई भी पॉट को लेते हैं उसको पूरा देखें कि वो क्लीन होना चाहिए। मार्केट से लाते हैं, नर्सरी से लाते हैं, उसको पूरा वॉश करिए अच्छी तरह से, एक दिन उसको सूखने दीजिए, सोलराइज कीजिए उसे, एंड देन उसका बॉटम जो होल है वो देखना चाहिए कि जहाँ से वाटर जो है, एक्स्ट्रा वाटर जो है वो निकल जाना चाहिए। तो उसके होल्स प्रॉपर होने चाहिए पॉट के, एंड देन उसके सबसे पहली फिलिंग जो होगी उसके ऊपर आप छोटे जैसे ये टेराकोटा के पीसीज होते हैं, गमले हमारे टूट जाते हैं, उनके जो पीसीज हो गए, घड़े के पीसीज हो गए, जो पिक्चर टूट जाता है उसके छोटे छोटे टिप्पणियां होती हैं, उससे फिल कीजिए। देन सेकेंड लेयर जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए लीफ मोल्ड की। लीफ मोल्ड जो है वो बहुत ही एक अच्छा ऑर्गेनिक मैटर है। और थर्ड लेयर जो है हम उसके बाद ऐड करेंगे सॉइल की, एंड देन वी गो फॉर काउडंग। और इसके साथ चाहे आप काउडंग यूज कर सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट, जो भी आपको ज्यादा बेस्ट लगती है। अगर आप वेजिस के लिए जाते हैं, वेजिस प्लांट्स प्लांटेशन के लिए जाते हैं, तो गो फॉर द, यू कैन से इट, काउडंग। और वर्मी कंपोस्ट भी अच्छा है, दोनों चीजें हैं। और मैं तो ज्यादा प्रेफर करूंगी कि बायो कंपोस्ट जो हम अपने घर में ही बनाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर अपनी किचन वेस्ट से, सो आई प्रेफर दैट। मेरे जितने भी प्लांट्स हैं, अभी आप स्लाइड्स में देखा होगा आपने, ऑल आर टोटली लश ग्रीन एंड शाइनी वन, so because I always use the organic matter। तो बायो एंजाइम्स हैं जो कि मैं लिक्विड फर्टिलाइजर के जगह पे यूज करती हूँ। एंड सेम जैसे फ्रूटिंग के लिए, जैसे गावा की फ्रूटिंग है, पोमोग्रेनेट है मेरे पास, लेमन्स हैं, एंड मैंगो भी है मेरे यहाँ। तो उन सब की फ्रूटिंग से पहले जब बडिंग होती है तो आई प्रेफर टू गिव अ बनाना लिक्विड फर्टिलाइजर, इज वन ऑफ द बेस्ट जो है, पोटाश है जो ऑर्गेनिक फॉर्म में है। तो इसी टाइप से आप कोई क्वारीज है तो पूछ सकते हैं कि जब हमने पॉट फिल कर लिया, फिर उसके बाद हमने प्लांटर लगा लिया,
देन ऊपर उसके लास्ट पॉइंट जो होता है मल्चिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या है कि अक्सर मल्चिंग नहीं करते हैं। वी सेज कि क्या करना है, वो दिख रही है, क्लीन रहना चाहिए गमला। नो, मल्चिंग इज मस्ट। ऊपर आप मल्चिंग करिए। मल्चिंग आप ब्राउन लीव्स की कर सकते हैं, गार्डन ग्रास की कर सकते हैं। और उससे क्या होता है कि जो डायरेक्ट सन वेव्स आ रही हैं वो आपकी प्लांट की रूट्स को प्रोटेक्ट करेंगी। वो डायरेक्ट जो सन रेज है वो आपकी रूट जोन पे नहीं जाएगा अगर मल्च होगा ऑलरेडी। तो मल्चिंग जो है वो हमेशा आपको अपने हर एक प्लांटर के लिए करनी चाहिए। उनकी लाइफ स्पेन जो है अच्छी हो जाती है, बिकॉज रूट जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही प्लांट अच्छा होगा। प्लांट अगर हेल्दी होगा तो यू गेट ए हेल्दी एंड कलरफुल एंड फ्रेग्रेंट वाले फ्लावर्स मिलेंगे। सेम विद द वेजीज ऑल्सो, जो कि अभी एकता जी दिखा सकते हैं वो पीपीटी। तो ये सब मेरी प्लांटर्स में ही हुए हुए हैं, जो छोटे छोटे ज्यादा बड़े प्लांटर्स नहीं है मेरे। एंड सिर्फ ऑर्गेनिक मेथड यूज करने के साथ साथ डेली की केयर थोड़ी सी, एंड उसके साथ आप सारे सीजनल प्लांट्स जो हैं लगाती हूँ। एंड सी द छोटे छोटे ही प्लांट्स हैं। एंड इसमें अब ये जैसे करेले की बेल है, ये अभी स्टार्ट करेगी, बडिंग इसकी स्टार्ट हुई है दिस टाइम। तो आफ्टर 1 शॉवर 2 शॉवर्स के बाद इसकी जो बडिंग स्टार्ट हुई है, और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे इसमें फ्रूटिंग होगी करेला की। तो इट्स बहुत एक अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हमने उगाया एंड वी ग्रो एंड ऑर्गेनिक फूड ग्रो करके। एक क्या है कि वेस्ट से ही मैं कहूँगी, क्योंकि मैं मेनली सारा वही यूज करती हूँ, किचन वेस्ट ही यूज करती हूँ इसमें। तो सामने ये फाइकस है, फाइकस के प्लांट्स हैं। ये थोड़ा महीना पहले की ली हुई थी फाइकस की मैंने। इसमें क्या है कि उस टाइम टेम्परेचर बहुत हाई था, तो उस करके जो है ये थोड़ा उसमें शेप में नहीं है। तो इस टाइप से प्लांट्स का जो है आप जितना इनको ऑर्गेनिक मैटर देंगे उतना अच्छा ग्रो करेंगे, और उतना अच्छा कि हेल्दी वो है। अगर हम उनको कुछ हेल्दी दे रहे हैं तो दे ऑल्सो गिव बैक अस अ हेल्दी प्रोडक्ट। हमारी जो प्लांटेशन है प्रोडक्टिव रहे है काफी। तो इसमें ये सारी जेलपेनो चिलीज थी, जो एक 1.5 बाय 1.5 की एक प्लेट है उसमें हुई है। बहुत छोटा सा होता है 1.5 बाय 1 का। सो उसमें हुई है। एंड ये कुछ कंपोस्ट के मैंने दिखाए हैं कि किस तरह से जो है कंपोस्ट मैं बनाती हूँ। किस टाइप से मैंने जो है किचन वेस्ट कलेक्ट करके और उसको दिखाया है। इसमें कोकोपीट का भी एक है, जैसे वो जो कोकोनट हस्क आती है, तो उसको भी कुछ प्लांट्स के लिए हम लोग रेडी करते हैं। और इसमें कोई स्मेल नहीं। और जितनी आपकी जो भी आप किचन वेस्ट बनाते हैं, ये नए प्लांटर्स हैं, बिल्कुल अभी लगाए हुए हैं। ये क्या कहते हैं, कॉर्न के हैं, स्वीट कॉर्न है ये। तो आप देख सकते हैं कितना कितना बड़ा ये है जिसमें ये लगाया गया है। एंड जब मैंने सीड्स डाले थे तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज्यादा इसकी वो हो जाएगी। तो अब इस थोड़ा सा ये बड़े हो जाएंगे तो आई हैव टू चेंज द पॉट्स, बिकॉज इनको इनकी भी जो रूट्स होती हैं वो थोड़ा ज्यादा जगह लेती हैं। तो फ्रूटिंग के साथ साथ इनको भी मेरे को थोड़ा सा इनको अलग करना पड़ेगा। और
आप पूछ सकते हैं कि कोई क्वेरीज हैं किसी की तो। सीमा जी, मैं जानना चाहूंगी कि हमने देखा कि आपने बहुत ही ब्यूटीफुली इस सारे सिस्टम को बनाया है। एंड आप, मुझे लगता है कि काफी सारे आप वेस्ट कंटेनर्स को भी यूज कर रही हैं यहाँ पर। एंड मैम यहाँ, एक मिनट एकता जी, सॉरी, वो मेरे को थोड़ा सा वो जी जी, मैं हाँ कहना ये चाह रही थी कि आपने आई थिंक बहुत सारे वेस्ट कंटेनर्स को भी यहाँ पर यूज किया है। हाँ जी जी। जी जी एंड जैसे आप यहाँ पर ये बायो एंजाइम्स दिखा रहे हैं कि आपने कई तरह के बायो एंजाइम्स बनाए हैं। हाँ तो क्या जी जब हम ये बायो एंजाइम्स बनाते हैं तो इनकी यूटिलिटी भी डिफरेंट रहती है? जैसे अनियन है। हाँ अ, हाँ। अब जैसे इसमें अनियन में जैसे मैग्नीशियम है, जिंक है। तो ओके। जिंक हमारे प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है, जो कि हमें जितने भी मैन्योर्स वगैरह या फर्टिलाइजर डालते हैं तो उसमें हमें जिंक नहीं मिलता है। ठीक है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम नहीं मिलता है। तो जी। ये जो चीज है वो हमारी पूरी करता है अनियन पील का वाटर। ओके। सो और देखिए। दूसरा सबसे बड़ा, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि इससे पेस्ट नहीं आते हैं। यस। सो आई थिंक, देखिए अभी हम इसी पे बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने घरों को जीरो वेस्ट होम्स जो है वो बना सकते हैं। जितना जी भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको हम लोग बायो एंजाइम्स एंड जी ऑर्गेनिक कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमारे प्लांट्स के लिए हेल्दी है और हमारे खुद के जी लिए भी। जब हम इसी तरह से प्लांट्स ग्रो करते हैं तो हमारे सराउंडिंग्स में कितना पोल्यूशन कंट्रोल्ड रहता है, जी। ग्रीनरी रहती है। एंड प्लस हम लोग खुद अपने घर में ग्रो करके वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को एंजॉय कर सकते हैं। वेरी ट्रू। सो यस। और हमारे घरों से जो गंदगी, जो इतने बड़े बड़े डंपिंग ग्राउंड जो हम बना रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं रहेंगे। एंड बिल्कुल। इट्स ऑलवेज बेटर कि जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको आप अपने घरों में ही यूज कीजिए। एंड जो प्लास्टिक एंड अदर मटेरियल्स हैं उनको आप रीयूजेबल ऐसे एजेंसीज में दीजिए जहाँ पर कि उनको रीयूज किया जाता है। राइट। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो हमें हेल्प कर सकती हैं हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। सो सीमा जी, आप जैसे अभी जी वी आर जस्ट एट द एंड ऑफ द सेशन, you would like to conclude that how we can contribute to our environment. And you see how beautifully you have decorated your house with a lot of greenery. And I think almost you have every type of plants, like ornamental हाँ जी। flowers and vegetables, fruits. I think bonsais are also there. Like बॉन्साई या ficus, या yeah, bonsais हाँ। are also there. So यस there are, यस। यहाँ अभी जो है, मैं अभी इवेंट पे थी। जी यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोगों के ये थॉट्स रहते हैं कि नहीं, बॉन्साई घर में नहीं लगाना है और बॉन्साई नहीं बनाना है क्योंकि ये ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है और ये घर में रखना अच्छा नहीं होगा, कैक्टस को घर में रखना अच्छा नहीं है। तो आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स हैं? मैं मैं इसमें जैसे ये मैंने बॉन्साई ट्री है मेरे, बॉन्साई ट्री है ऑलरेडी, ये 10 to 12 फीट हैं, 10 से 12 फुट के हैं ये। तो और इनको जिस पॉट में मैंने इसको डाला हुआ है वो 22 इंचेस का पॉट है। जी। तो ये क्या कहते हैं, बॉन्साई मतलब एक वो जो बड़ा ट्री होता है, बिकॉज हम लोग आज की डेट में क्या है, फ्लैट्स में रहते हैं, बालकनीज हैं हमारे पास, लेकिन हमारे शौक हैं, हमारा मन करता है कि हम भी वो चीजें लगाएं, हम भी एक एटमॉस्फेयर ले कि जैसे फार्म्स में होता है एंड जो लैंड्स में होता है। तो अपनी उस चीज को कंप्लीट करने के लिए मैंने, ये मेरे पास 5 हैं बॉन्साई ट्रीज, एंड सारे फाइकस की अलग अलग वैरायटी है, दैट्स वंडरफुल। फाइकस की है। तो एंड आई लव दैट, मैं उस चीज में वो नहीं है कि ठीक है अब जिस लैंड नहीं है मेरे पास, तो आई हैड अ टेरेस है, तो उसको भी उसी टाइप से बनाने की कोशिश की है कि जैसे फार्म्स में होता है, ट्रीज भी होते हैं, छोटे प्लांटर्स भी होते हैं, वेजिटेबल्स भी होती हैं, इट्स अ टोटल मतलब इकोसिस्टम। हाँ जी। तो अगर हम लोग अपना एक नेचुरल स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें अकॉर्डिंग टू स्पेस, पहले हमारे पास स्पेस थी तो हम लोग उस हिसाब से पौधे लगा रहे थे, लेकिन हाँ अभी जो इतनी ज्यादा अर्बनाइजेशन हो चुकी है, जी इतना ज्यादा कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में हम आ चुके हैं, तो जितना स्पेस अवेलेबल है उसमें जी हमें मैक्सिमम प्लांट्स जो है वो लगाने चाहिए। हाँ तो जी जो भी उसमें ग्रोथ होगी दैट इज एक्सेप्टेबल टू अस। यस, डेफिनेटली हम लोगों ह्यूमंस की वजह से
हमने और स्पीशीज के लिए स्पेसेस काफी कम कर दिए, हाँ जी स्टिल फिर भी जितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं, जितनी लिमिटेड स्पेस हमारे पास अवेलेबल है जी हमारे जी अपने प्रेमिसेस में, उसमें हम राइट लोग ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं और इस ग्रीनरी को बढ़ावा दें. every corner as you said Yes, yeah, is a and green every corner every corner needs a plant. So yeah because we need to breathe every moment. yeah तो वो ये चीज जो थी शास्त्री जी के टाइम पे स्टार्ट की गई थी, किचन गार्डनिंग का जो कॉन्सेप्ट है एकता जी, तो ये धीरे 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 जो सब इसको अगर अडेप्ट कर लेते हैं तो वी कैन ग्रो द ऑर्गेनिक फूड जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी फैमिली की रिक्वायरमेंट है, अपने ही घर पे, और जीरो वेस्ट पे अगर आप चलते हैं तो मेरे ख्याल से आप अपने प्लैनेट को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. जितना हम अपने प्लैनेट से ले रहे हैं एटलीस्ट उसमें से कुछ कंट्रीब्यूशन तो हम उसको हम रिटर्न करें. बिल्कुल बिल्कुल एंड वी सीमा हैव जी, जैसे आप अपनी यहाँ पर अपनी वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो कर रही हैं, सो जिनके पास लैंड है, जो सोसाइटीज में रह रहे हैं, सो हाँ जी कम्युनिटी फार्मिंग के ऊपर भी काम किया हाँ, जा सकता है. बैल्कनीज बिल्कुल एंड टेरेसेस पर पूरे हम्म पूरे ग्रुप्स जो हैं, पूरी पूरी हम्म, सोसाइटी जो है, तो मिलकर जो है कम्युनिटी फार्मिंग जो है वो कर सकते हैं. बिल्कुल So this वेरी way राइट they can distribute the produce हम्म among themselves. हाँ जी This will also help. वेरी वेरी मच, बिकॉज हमारा हमारा मेन मोटो होना चाहिए कि हमने सोसाइटी से इतना कुछ अपने ऑलरेडी लिया है, नाउ इट्स टाइम टू गिव बैक. Yes. तो वो गिव बैक तभी होगा जब एक हाथ से दो हाथ, दो हाथ से पूरी एक चेन बनेगी, तो तभी हम कर पाएंगे. एंड इट इज वेरी इजी, ऐसा नहीं है कोई. अब जैसे अभी आपने इसमें स्क्रीन पे दिखाया था, मैंने बॉटल्स में घी की पील्स डाले हुए हैं, तोरई के पील्स डाले हुए हैं, टमाटो के डाले हुए हैं. तो इन सब का वाटर जो अगर ये छिलके में फेंक देती हूँ तो एक लैंडफिल ही भरेगा ना, लेकिन उसका वाटर में मैं बॉटल्स में भर के उसका सारा जितना उसका न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो सारे मेरे वाटर में आ गया, एंड देन आई गिव बैक माई वेजिटेबल्स. तो उसके बाद आप मेरे टमाटर जो ग्रो किए हुए हैं उनका रेडिशपन देखिए. ये कुछ बेसिक चीजें हैं कि वो ऑलरेडी उसमें आती हैं, फॉर्म्स में आती हैं. तो जब डिफरेंट है, ऐसे मैं स्ट्रॉबेरीज अभी अक्टूबर में लगाऊंगी, तो आई ऑलवेज एड लिक्विड फर्टिलाइजर ऑफ बीट रूट. अब आप कहेंगे क्योंकि बीट रूट का क्यों डाला भाई, उसमें उसमें इतने न्यूट्रिशियस वैल्यू है, एंड प्लस द कलर, जो वो कलर देगा ना स्ट्रॉबेरी को, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा. That's wonderful. We have to come to your place for a party. या Strawberry वेल, party. Right. यू आर वेलकम वेलकम. We will definitely join you, Seema ji. हाँ जी And thank you. Thanks a lot, Seema ji. And thanks for this wonderful session. We will continue the sessions with you and with the special sessions like how to grow special vegetables, only Right. tomatoes or only the Right. jalapenos. So we will continue with the sessions. Thanks. Thanks. Any audience would like to ask the questions from Seema ji? So here we would like to introduce the Triveni. Triveni is a combination of three plants that neem, पीपल and बरगद. ये तीनों पौधे ऐसे हैं जो अपने आप में ही एक कंप्लीट इकोसिस्टम है, और अगर इन तीनों पौधों को इकट्ठे एक साथ लगाया जाता है तो उसको हम त्रिवेणी बोलते हैं. तो हमारी ये प्रोजेक्ट हमने लास्ट ईयर शुरू किया था. आप सबसे रिक्वेस्ट है, घरों में, बाहर, जमीन में, जहाँ कहीं पर भी आपको लगता है तो आप त्रिवेणी जरूर लगाइए, और उसकी आप इमेज और लोकेशन हमारे साथ शेयर कीजिए. ये जो है हमारी वेबसाइट है सृष्टि.org, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट किया जाएगा कि कहाँ पर कितनी त्रिवेणी जो है वो लगाई गई है और किसके द्वारा लगाई गई है. So let's contribute to our environment. Let's adopt the zero waste concept. जो कि जीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत जरूरी है. जितना हम माई गार्बेज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम अपने गार्बेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे तो डंपिंग ग्राउंड जो है वो क्रिएट नहीं होंगे और हमें हर जगह पे साफ सफाई मिलेगी. स्लम्स एंड ऑल जो हम कहते हैं कि जी ये डंपिंग ग्राउंड है, यहाँ पे स्लम्स में बहुत गंदगी है, या हमारे घर के बाहर जो गंदगी इकट्ठी हो रही है, देखिए वो गंदगी हमारे घरों से ही आ रही है और उसके लिए सोल्यूशंस भी हमें खुद ही निकालने होंगे, कोई बाहर से नहीं निकालेगा. So thank you lot. Thanks a lot, Seema ji. Thanks a lot. Thanks, to Ekta all ji, the giving me this audiences. platform and inviting me.
to speak Seema ji. on my favorite topics. Seema ji, thanks a lot for accepting our invitation. Many more sessions Thank- with you we are expecting, and Yeah. thanks a lot. Thank you, Ekta ji. And See you Bye-bye. all on next Saturday at Sure. sorry, first and third Saturday for the Greener Happier Tomorrow shows. Join us as a speaker, as an audience, and share your experience. Ask our experts, and this will be creating a wonderful green community. Thanks a lot. Very thanks, Ekta ji, Rashmi di, and Damayanti. Okay, bye. Bye. Bye.